Hi everyone. Hello, Maniji. Good Hi, evening. हाय प्रत्युष। सबसे पहले सबको यहाँ पर नए वर्ष की शुभकामनाएं। Yeah, Happy New Year, everyone. ओके, आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद। Yeah, yeah, Maniji. So, first of all, good evening, everyone, and thank you all for joining. And of course, Happy New Year to everyone. So, as this space is again the hosted by our Manish Botraji, and in our last two, three spaces, in fact, I think this is the fourth space probably which we are co-hosting. And in the last two, three space, we have talked about the key areas. Point was Bank Nifty. We also talked about the actual level for the Dow Jones, and we also have spoken about the PSU Bank Index. So these were the two, three main discussions in the last two, three spaces. So of course, this space is also will be comprising of all these spaces, and we also will include the most important part of the Bank Nifty, which has played a very important role for the last few weeks. Uh, Okay, to start off with, Manish ji, as I'm sure ki for the last 1 month, market has been very up and down, especially for the traders, and there was some very panic situation कि जहाँ पे सबको ये लग रहा था कि बस अब मार्केट गया. We can also see many tweets कि अब निफ्टी 14,000 15,000 एंड वेग वेग टारगेट्स आ रहे थे. And I think you were the only person which actually I follow a lot of them, but only one person I've always been getting the positive vibes with the especially with the logic and with the levels. So to start off with, how do you see Bank Nifty and especially the levels which the 200 DMA, which I've also seen your tweets, which has broken, and even after that, the market supported. So can you please say something on that? या ऐसा है कि लाइक दिस दिसंबर, आई मीन फ्रॉम द एंड ऑफ नवंबर से ये दिसंबर, आई वुड से दिस मंथ वी हैव सीन वन ऑफ द बेस्ट करेक्शन इन द रिसेंट 1 year plus. आई मीन Right. इन बिटवीन देयर हैड बीन, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए ही हैं. लाइक एवरी मंथ वी हैव सीन सम, मतलब कुछ ना कुछ डिप हमें मतलब आया ही है, मतलब मार्केट में करेक्शन हुआ ही है. बट दिस करेक्शन, आई मीन नवंबर एंड से लेकर दिसंबर, द एंटायर मंथ, आई मीन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट करेक्शन इन द रिसेंट 1 year. So अब ये था कि लाइक from the very initial, I mean, we were trying to find out the strength for the market. I mean, क्या क्या चीज है जो कि एक मार्केट को स्ट्रेंथ दे सकता है. So Mhm. like in this, so इस बार, I mean, since last 1 month, I mean, we have been tracking very closely the Dow Jones, Reliance Industries, Bank Nifty. I mean, these were the three keys initially, right? Yes. और मतलब लाइक मार्केट में मार्केट में हमको स्ट्रेंथ ढूंढना है कि आई मीन किन किन चीजों से हमें स्ट्रेंथ मिलता है. सो फॉर Mhm. अस, आई मीन, रिलायंस वाज द की पैरामीटर along with Dow Jones, Bank Nifty and few other indexes, जिसमें PSU बैंक इंडेक्स भी है, और मतलब और निफ्टी भी है, and some few Small others. cap index and yeah, Small cap भी है, या small cap index भी. So yeah. so initially first, if I am, मुझे अगर याद अगर ठीक से है तो 29 नवंबर को, आई मीन वी, मतलब अपना ये था कि बैंक निफ्टी, आई मीन आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक के मतलब के आसपास की. अपना ये था कि I mean, bank index was the only index which was very near to its crucial support area at that time, which Mhm. was around 35, 200, 300, which we have Right. discussed in our earlier spaces. ठीक है. Yeah. So like, and other indices like निफ्टी और रिलायंस स्टॉक पकड़ लेते हैं, या फिर वो सब बहुत नीचे थे. आई I मीन mean, उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बहुत नीचे थे, अराउंड 16,200 300 के आसपास. सो Mhm. सो तो अपने को ये देखना था कि कौन सा इंडेक्स वेरी
कौन सा इंडेक्स जो ये मतलब सबसे ज्यादा नियरेस्ट है अपने क्रूशल ये मतलब अपना जो क्रूशल एरिया के सामने। तो सपोर्ट। उस समय हाँ, उस समय दो इंडेक्सेस वेरी मच जो कि बहुत क्लोज थे। एक था अपना बैंक निफ्टी और दूसरा था डाउ जोन्स। हम्म। सो बैंक निफ्टी का अपना एरिया था 35,300-200 का, जहां पर इसने लो बनाया 35,328 के आसपास का लो बनाया, 35,328, जो कि वहां से हम्म। फिर ये 2200 पॉइंट का जंप भी दिया। अगर किसी को हम्म। याद है तो, लोग वैसे सब भूल जाते हैं आई मीन तो ये मतलब 35,328 के आसपास से उसने लो बनाया, और जहां से वो 2200-2300 पॉइंट का उसने जंप भी दिया है इन्हें, मतलब ये एक हफ्ते के अंदर में, आई मीन 6-7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में। राइट। उसी वक्त उसी वक्त वी आल्सो स्पोक अबाउट डाउ जोन्स। आई मीन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की एरिया। आई मीन अपने ये मतलब मेरा एक ट्वीट भी था, ट्वीट डेटेड 26 नवंबर। उसमें ये लिखा था कि डाउ जोन्स क्लोज टू 34,000, 33,900 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। आई मीन जब तक डाउ स्ट्रॉन्ग है, कुछ मतलब ये मतलब कोई मतलब डर दूर है। हम्म। सो सो 1 तारीख को डाउ जोन्स मेड अ लो ऑफ 34,006, राइट। 34006। That was the low it made on 1st of December, जो कि that area maintain थ्रू आउट। और आज के डेट में डाउ जोन्स नया हाई में चल रहा है 2600 पॉइंट ऊपर, वेयर डाउ जोन्स ने नया हाई बनाया है 36,600 के आसपास। सो दिस इज राइट। हाउ की एरिया हेल्प्स। आई मीन दिस इज हाउ की एरिया हेल्प्स, और की एरिया मतलब बहुत हेल्प करता है। सो सो लाइक पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि 16,200 आएगा, वॉट एवर आएगा। ठीक है, एनीथिंग कैन कम, बट कब आ सकता है? आई मीन व्हेन दैट एरिया कैन कम, आई मीन कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा तो ही वो एरिया आएगा। सो अपना हम्म। ये था कि जिस दिन बैंक इंडेक्स 35,400 या 300 तोड़ देगा, उसके बाद ही हमें दूसरे इंडेक्सेस में डाउनसाइड दिखेगी, उसके पहले नहीं। राइट। और वो हुआ, द डे इट वेंट बिलो 35,400 बैंक निफ्टी वीक हो गया, और नीचे में निफ्टी ने 16,400 का एरिया उसने देखा इन ए एंड वेरी। विच वाज आई थिंक आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 डे मूविंग एवरेज यस, के हाँ, आसपास ही था। एग्जैक्टली वो उसके आसपास था। सो हाँ। सो 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 एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जिस समय लाइक लाइक अगर कोई विलेन था तो वो था बैंक निफ्टी था, और हीरो था तो अपना डाउ जोन्स था। डाउ जोन्स, रिलायंस एंड ये निफ्टी विच वाज निफ्टी। विच होल्डिंग द मार्केट। राइट। अब अब नेक्स्ट अब क्या था, व्हाट वाज मतलब लास्ट 2 हफ्ते से यही था कि मतलब कि ये तीन हीरो थे जो मार्केट को बचा रहे थे, और एक था विलेन बैंक निफ्टी, जो कि मार्केट को वो 35,400 के ऊपर जाने नहीं दे रहा था। 35,400-500 जो कि उसका क्रिटिकल एरिया था, मेन एरिया था वो। राइट। राइट। सो 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 मतलब सो ये लास्ट तो नीचे में भी सो नीचे में बैंक इंडेक्स वेंट अप टू 34,000 के आसपास, और बहुत दिन तक वहां घूमते रहा। सो फाइनली इट मैनेजेस टू क्रॉस 35,400 500 के आसपास लास्ट फ्राइडे, which is very key. I mean, this is the first close. I mean, but this is very key important factor. I mean, this is such a area 35,400 35,500 के ऊपर में अगर बैंक निफ्टी अगर होल्ड कर लेता है, आई मीन फॉर अनदर फ्यू डेज, आई मीन मतलब market can get the much needed strength, big strength. I mean, this is a big possibility. I mean, so far now we have got just one close above the area last Friday. Along उसके मतलब उस एरिया के बंद होने के बाद में हमें एफआई का बाय भी मिला है। तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है कि इस एरिया के ऊपर में 35,400 500 के ऊपर बंद करता है। ये ऐसा एरिया है कि जिसके ऊपर में वी आर एक्सपेक्टिंग द एफआई बाइज टू कंटिन्यू एज वेल। राइट। एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर मनीष जी लाइक आई थिंक वो अपने पर्सनली बात हुई थी ऑन ऑन आवर कॉल्स कि एंड यू स्पेसिफिकली सेड कि जिस दिन 35,400 500 का जो एक वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का उसको क्रॉस करा। प्रत्युष, you're not audible. We will get back in 5 minutes. Let's get Pratyush online.
आवाज नहीं आ रहा है. Not, it's showing connecting. Wait. Hello. Yeah, yeah, you're not audible, Yeah, I'm so Pratyush. sorry. I think the internet connectivity and line got disconnected. So No yeah, worries. actually, I was speaking about the like as in I was having a personal chat with Manishji, and he specifically mentioned that this 34 35,300 400 levels of बैंक निफ्टी एंड वहां पे इसको क्रॉस कराने के लिए एफआईआईज का बाय फिगर्स शुड बी ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक शायद 3 दिन पहले भी एक एफआईआई का छोटा सा बाय फिगर आया था देन अगेन एक सेल फिगर Yeah. आया बट यस हाँ, दिस हाँ. टाइम अगेन 35,300 400 क्रॉस करते ही वी सॉ अ वेरी स्मॉल हम्म. एफआईआई बाय फिगर नो डाउट फॉर श्योर Yeah. आई थिंक दिस शुड सस्टेन और बिकॉज कि आपको क्या लगता है कि ये वापस जो लॉकडाउन वाले सीन्स आ रहे हैं एंड एवरीवेयर वी टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन सीन्स एंड ऑल कि इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है See, like this, FI का जो चीज था, I mean, we have मतलब mentioned we have mentioned the same thing even on Twitter as well, कि मतलब ये ऐसा एरिया है कि I mean once this crosses we can मतलब FI का मतलब FI has to मतलब इसमें FI को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. I mean we have seen कि how it took, I mean 2 3 4 बार कम से कम मतलब ये अपन उस एरिया के आसपास घूम के आया. 35,300, 35,500 भी गया, 35,400 भी गया. I mean, this is how it moved on. It was such an important area to cross. And last Friday it managed to close our bit. And the best part was कि the entire hours of trading, I mean 6 7 घंटे की जितने hours की trading है, it manages to stay above that area for the entire राइट duration. राइट So this was one most important thing which happened. I mean, ठीक है, अभी भी it's too early to say, but this is very important area, and it would be great if it manages to continue to you to close above the same for the next मतलब आने वाले days में भी अगर वो उसके ऊपर बंद करता है. I mean that would be that would be a very plus point for the entire market. And now talking about Corona again, I mean देखो यार, मतलब whatever the condition we had in 2020, उससे तो 20 and 21 में उससे तो we are much better. I mean most of us are मतलब सबने मतलब वैक्सीनेटेड वैक्सीनेटेड भी हुए हुए हैं. एंड सी मतलब चीज देखो कि यूएस जैसे कंट्रीज में आज 5 से 6 लाख केसेस पर डे हो रहे हैं. आई मीन फिर भी वहां पर मुझे जितना मालूम है, मैंने जितना मालूम किया, वहां पर अभी तक सब कुछ खुला है, कुछ बंद भी नहीं हुआ है. एंड दी और ये मतलब इट्स माइल्ड, मोस्टली इट्स माइल्ड. मतलब हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ रेट इज क्वाइट लो एज ऑफ अभी तक तो बहुत कम है. सो और एंड लाइक एंड आवर और अपना जो मेडिसिन है, आई मीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, इट हैज बीन द बेस्ट सो फार इन. हेलो मनीष जी आर नॉट ऑडिबल आई थिंक वी आर फेसिंग लॉट ऑफ कनेक्टिविटी जस्ट अ मिनट वी विल बी बैक हेलो, am I audible? Pratyush, एक minute. I think some issue with internet. Just, I think some internet issues. Just getting back in 2 minutes.
I'm so sorry, just having some internet issue. Will be get back in another 1 2 minutes. Hello. Yes, yes, Pratyush. I Yeah, I mean, don't know what's wrong with it. I don't know, यार. कहाँ पर हुआ? Like where I still? How long you got to hear me from? मतलब कहाँ तक? We were talking about that Bank Nifty levels and for the FI wala thing Yeah, I was also and speaking COVID about Corona as and well. COVID. Yeah, Corona. Yeah, COVID. I was speaking. I don't know where where it went out of. You were talking about about the death rates and the हाँ, hospitalization हाँ, has हाँ, been very good. या मैं वही कह रहा था कि लाइक मतलब कोरोना व्हेन वी कंपेयर टू 2020 and 21, I mean the current condition you and situation is much better than that period. So उतना टेंशन ये मतलब करने का नहीं है. I mean things जो भी अभी हो रहे हैं, I mean things going to get well very soon, and mostly the cases are very much mild, and which and the so overall we can think of the best. I mean ज़्यादा इसमें मतलब टेंशन करने का कुछ है नहीं. Yeah, and I think Bank Nifty ने अभी फिलहाल एक I think the Bank Nifty levels are trying to take up the market, and Nifty is far from its 200-day moving average, that is I think Yes, around yes. 950 1000. Yeah. Like what happened when the bank index went below 35 400. So we were expecting Nifty to Nifty to come. come to close to come close to you around 16250 to 16450. So it made a low of 16410. So Yes. 16,510 से we are it has almost seen an upside of 1,000 points, close to 1,000 points. Right. And I Yeah, think with this, also the PSU Bank Index, which is also playing a very important role, I think yeah. this has also maintained that its 200-day moving average. Yes, And yes, yes, absolutely. PSU Bank Index has held the key areas very well, along with stocks like SBI and Canara Bank are holding very well. right. So things looks okay over there as well. Yeah. And of course, the big shot RIL, Reliance played a very, very important role. I saw your tweet. Absolutely. I mean, Reliance is the barometer. I mean, it's is a key indicator. Like where is the मतलब क्या हाल है मतलब एक मतलब market का strength को जानने में it is a key indicator. So we were expecting Reliance to hold two to 2250. yeah you around two to 2,270 plus minus. So I mean it did went below 8, but overall it managed to close out the area, and it also helped the market in a very big way. So as I said, Reliance, Nifty, and Dow Jones were the heroes, and Bank Nifty was the only villain. So which also last Friday closed out the key area. I hope it continues. I mean, it's very important for Bank Nifty to maintain above this current area. Yes, so I think फिलहाल तीन इंडेक्स हमारे I mean दो इंडेक्स and एक the RIL barometer which is for the market are actually favoring the market, but Yes. this Bank Nifty is now the most important thing which I think should play a very important role taking the Yeah. market higher. And of course we are seeing the budget also in the next 1 month. So what do you think about the key? Will it be a, can there be a pre-budget rally kind of a लाइक जो हम सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर को तो Yeah, चलिए ठीक because yeah, नहीं नहीं देखो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट लाइक व्हेन पीपल आस्क कि मार्केट क्या लगता है, तो उसे समझ है। जाओ कि इज अ ट्रेडर क्योंकि एक ट्रेडर ही पूछेगा एंड ऑब्वियसली ही शुड आस्क कि भैया मार्केट क्या लग रहा है. आई मीन वो ट्रेडर ही हम्म, पूछेगा, वो इन्वेस्टर नहीं पूछेगा. इन्वेस्टर पूछेगा तो ऐसे ही बस पूछ लिया, लाइक ठीक है यार बताओ क्या लग रहा है. वैसे आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बट ट्रेडर को हम्म, यार आई मीन ट्रेडर needs to update every time. I mean, it keeps on changing every hour, every मतलब day. तो वो पूछेगा ही कि how the market looks, and it's very important. उसको जानना भी है. I have been seeing few of the tweets where people were talking about 15,000 area. I mean, ठीक है, it's fine, it can come. We don't say it may not come, but क्या होने से वो आएगा? कौन सा एरिया ब्रेक करने से वो आएगा? That is to be mentioned as well. राइट
I mean आज अगर मैं 16,500 के आसपास इंडेक्स चल रहा है and somebody talks about 15,000 इंडेक्स, so like अगर कुछ बाई करने का भी मेरा मन होगा, I won't even dare कि भैया वो And तो 15,000 आ जाएगा. सो एटलीस्ट 15,000 कब आ सकता है? कौन से एरियाज ब्रेक करेंगे तब जाके ये 15,000 आ सकता है या और भी डाउन हो सकता है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि नहीं आएगा, बट देयर शुड कुछ कुछ होगा. समथिंग शुड हैपन व्हिच विल लीड टू द फॉल. आई मीन व्हेन द बैंक निफ्टी ब्रोक 35 400 300, तब हमने देखा कि उसमें भी फॉल आया और अदर इंडेक्स में भी फॉल आया. नाउ 15,000 आने के लिए द इंडेक्स हैज टू ब्रेक 16,200 एरिया, तब जाके वो और बिग होगा. बट लाइक पीपल लेकिन वो कोई दिस थिंग शुड बी मेंशन्ड. तो क्या कि पीपल कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन एज वेल. क्या राइट, वही होता है ना कि लाइक दैट्स व्हाट वी सी मेनी पीपल इन द पैनिक. इनफैक्ट बहुत लोग होते हैं इनफैक्ट जो मार्केट गिरता है तो बस अब मार्केट खत्म, 5,000 पॉइंट क्रैश, 10,000 पॉइंट क्रैश. एंड द रीजन किसी को नहीं पता. ऑफ कोर्स सब बोलते हैं कि ये रीजन एक्स वाई जेड रीजंस, बट आई थिंक द मेन थिंग विच एवरी पीपल शुड नो इज लाइक ये लेवल है, इसके नीचे आने से ये आएगा, जो आई थिंक बिल्कुल. मेनी पीपल डोंट फॉलो दैट. I think that is the most important thing which we get to learn from you for sure. And all are there in the tweets. ऐसा नहीं है कि just हम लोग we are just talking in the vague air and all. So that thing which we get from you, I think that is a very very important thing. And everyone, whoever are the followers of yours, and of course many people who have joined, should actually see and look back कि boss level जो इनका है level matters. So it actually level matters. So and actually it has given me as personally a very much confidence while trading in the markets, especially in the PSU bank levels, because I have been into trading lot of PSU bank index and stocks. But yes, thanks a lot Manish ji for sharing such a nice levels and especially the perfect levels I would say. So से बच्चों ऐसा है कि लाइक ये मुझे खुद को कॉन्फिडेंस इनसे लाइक इन सब एरिया से ही ये आई आल्सो गेट द कॉन्फिडेंस. दिस एंटायर मंथ हूएवर हैज जिसने भी पहला दूसरा ये जो भी स्पेसेस जिसने ज्वाइन किया होगा उसने देखा होगा. वी हैव डिस्कस इवन ऑन ट्विटर. वी हैव डिस्कस ओनली दिस 3 4 इंडेक्सेस. right, right, निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, रिलायंस, डाउ जोन्स. दिस वर द की. right, no doubt. या. So I think now we will can invite some few of the questions from our listeners. So यस. if anyone would like to ask, please can raise a request and so that we can take it one by one. I think let's get back to Parth. Parth is very active. Yeah, I always see him like in most of our spaces for sure. So Yes, yeah, yes, let's yes. let's take up from the I part. can also see. I can also see few of our very good friend Jay Mukherjee and Jimmy Shah as well. Thanks for joining, both of you. I think Part, you have muted yourself. Can you unmute yourself? Yeah. Hello Manishi. Hello Prithvi. Yes, Parth. Happy 2022. Yeah, happy 2022 आपको भी. Hello, Thank Part. you. Welcome. Yeah. So Please go ahead. yeah. हाँ मतलब I don't have any specific question. It's more on the terms of Happy New Year and thank you so much. Yeah. We had a same what you can say kind of views on Tata Power and it turned out to be really good. Like quick 5 to 7%. Yeah. So like एक question अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, like which sector do you feel like would be a good one for 2022? Like personally, I feel like SaaS company which are right now getting listed also, like Intellect Design is there, which is a old one, and Latent View is there, which I feel like they can perform well in next year or maybe couple of years here. Parth, I haven't gone through on any such thing so Okay. far. So according to you, क्या which do you think जो like it can perform? ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कोई इंडिविजुअल स्टडी कुछ किया नहीं है. बट व्हाट आई ऑब्जर्व इन वन थिंग इन बैंक निफ्टी. many other people have observed as well कि ICICI Bank has been the most strongest Yeah. in the private banking space Exactly. Yes. in this entire fall. पता नहीं लेकिन इसमें कुछ होता हुआ दिख रहा बड़ा. दिस इज व्हाट इज द करंट ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट टाइम
कि मतलब HDFC से ऊपर ICICI बैंक हैज हेल्ड लाइक Yes. एनीथिंग. I mean, this in the entire fall, 1 month का fall जो था दिसंबर में, बैंक निफ्टी came down from 42, 41,800 to 34,000. I mean, this is the only bank, ICICI Bank, which is showing a super duper strength. I don't know what's coming in, but कुछ तो बात है जो पता नहीं, बाद में मालूम पड़ेगा. हाँ, कुछ So पकड़ this is what है. हाँ, ये है. और क्या कि लाइक कोरोना के फियर से, आई मीन जो कोरोना से डायरेक्ट रिलेटेड है, आई मीन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, द मल्टीप्लेक्स सेक्टर. आई मीन उसने बहुत अच्छा फॉल देखा है. आई मीन इफ Right. यू टॉक अबाउट PVR और आइनॉक्स, PVR has come down from 1880 to 12,000 to 1,200 plus, and Inox has come down from 466, which was a recent high, to 340 plus. So I mean these are the few areas जो कि सबसे ज्यादा फॉल देखा ड्यू टू कोविड फियर. बट एक चीज और देखना है कि लाइक रिसेंटली मतलब आई मीन दिस फियर इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड. So I mean, see, it's personal observation after all. So whatever you do, you do your own due diligence. But these are the मतलब few like एक और company है UFO, which I also which is also in the same, मतलब Correct. Movies. मल्टीप्लेक्स बिजनेस. हाँ, मल्टीप्लेक्स टाइप मतलब बिजनेस में है. So I mean Right. these are the few things which is, I mean even in Inox the promoter bought for the first time since IPO. I mean they recently bought 5 lakh shares. If I'm right, right, they bought close to 5 lakh shares at around 400 510 rupees. So I mean this, I mean ये ऐसा एक ये मल्टीप्लेक्स ऐसा एक सेक्टर है जो कि अभी वेरी मच प्रेशर में है ड्यू टू कोरोना फियर. But Hmm. if somebody feels this fear is going to be very short lived, I mean then if it I mean अगर ऐसा होता है, then I think we can see good upside in this sector. I mean Okay. this sector, which is what I track very closely. Okay. That's right. I also hold I it's better to disclose, I also hold Inox Leisure. So Yeah, me खुद का too. भी interest है. Yes, yes. That's good. Yes. That's good. Okay. Thank you so much, Manishji, and Yeah, Happy man. New Year and all the Same success. to you, Pat. Thank you. Okay. Yeah, anyone else who have any question? Am I audible? Uh, Yeah, you are audible. okay, Parth, ठीक है. I think people don't have any questions. That's nice. Is Pranaya online? Pranaya Purohit? Okay. Pankaj. Hi, Pankaj. Pankaj. Yeah, hello Manish ji. Hi, Pankaj. How are you, यार? कैसे हो? बढ़िया एकदम. गुड इवनिंग. Good. बताओ. Good evening, यार. जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब जैसे FIIs भी बाइंग आ गई है, क्लोजिंग वाज आल्सो वेरी गुड एंड सब बाइंग सिग्नल भी आ गया है. सो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब FIIs कोई गेम खेल रहे हो.
And See, I mean, एक it's बार quite possible. It's quite possible. इसलिए मैं ये मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि लास्ट फ्राइडे का जो बेस्ट पार्ट ये था कि आई मीन द एंटायर आवर आई मीन इट मेंटेन आई मीन इट्स वाज नॉट इजी आई मीन 35 400 500 में इतना माल मिलता है आई मीन उतना माल खाना भी इट्स नॉट इजी so the entire hour it has absorbed all the supplies which it's got over there so which is very important but still it's a one day first day ही है first day का closing है so I would prefer कि ये और I mean इसको strength होने के लिए it has to keep giving the closing above this area 35 400 500 I mean couple of few more closing will make it more stronger अगर ये नहीं होता है देन अगेन इट्स गोइंग टू मूव साइडवेज मतलब वही मतलब ऑन द डाउन साइड 34,600 to 33,900 दिस कुड बी द एरिया बट अगर ये कंटिन्यूस बेसिस पे अगर बंद कर देता है 35,400 500 के ऊपर में आई मीन उसके ऊपर और भी अगर टिक जाता है आई मीन स्ट्रेंथ वी विल सी द स्ट्रेंथ अलोंग विद एफआई का भी इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा right. So thank you, Manish ji. मोस्ट वेलकम पंकज hello anyone else Mohit yes Mohit Hi. हाँ सर आपका हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल मेरा सवाल आरबीएल बैंक पे है और फर्दर फॉल दिख सकता है क्या इसमें? देखते हैं गिव मी 5 मिनट्स 1 मिनट इनफ है यस मोहित यू देयर ना हाँ सर। देखो 110 से लेकर 107 तक पॉसिबिलिटी है नीचे आने का ओके दैट कुड बी द लास्ट होप एरिया ओके 107 तक लास्ट होप एरिया आई मीन 110 से 107 तक अगर बाउंस करे तो कर सकता है दैट कुड बी द लास्ट गुड एरिया इफ इट गोज बिलो दैट देन फर्दर ब्रेक डाउन ओके सर। कुछ टाइम फ्रेम ये मंथ? नहीं टाइम फ्रेम का ऐसा कुछ पता नहीं चलता बट जो बंद अभी किया है लास्ट फ्राइडे जो बंद किया है तो उसके हिसाब से तो सपोर्ट है अभी हल्का फुल्का सपोर्ट है आई मीन क्लोज टू खास मतलब 120 एक एरिया है फिर सीधा 110 107 ओके सर। और एक रिक्वेस्ट आपसे, यस आपका शेयर कॉल्स तो बहुत अच्छा रहता है लेवल से भी, थोड़ा बैंक निफ्टी का थोड़ा रेगुलर करिए सर आप। इट्स नॉट रिक्वायर्ड यार आई मीन डेली बोलने का कुछ है ही नहीं आई मीन एक बार दे दिया आई मीन दैट एरिया वर्क्स ऑन आई मीन दिस टाइम मैंने इस बार एरिया दिया है एक बार आई मीन वी हैव गिवन जस्ट वन एरिया रेंज दे दिया एंड इन दैट रेंज पे गेम हो रहा है आई मीन पीपल हैव बीन प्लेइंग इन दैट रेंज ऑन द सेम आई मीन डेली का कुछ है नहीं देने का व्हेनेवर देयर इज समथिंग वेरी मच मतलब कुछ मतलब क्रूशियल कुछ हो तब दे तो अच्छा है आई मीन डेली कुछ नहीं रहता इनमें देने के लिए आई मीन जहां मतलब ऐसे पॉइंट में दो जहां पर यू हैव गॉट बिग गैप्स करेक्ट जहां से बड़ा हो सकता है आई मीन वहां दो आई मीन तो एक बार अगर रेंज दे दिया है तो जब तक वो रेंज के अंदर घूम रहा है उसमें खेलते रहो फिर इट्स ओके नॉट मतलब डेली का क्योंकि लेवल्स डजंट चेंज डेली करेक्ट। हाँ ओके सर, ये थैंक यू। ठीक है
Do we have Pratyush here? I lost him again as a host. Any further query on markets? किसी को कुछ अगर नहीं समझ में आया तो Hello, am I audible? Hello, am I audible? Hello, Vaibhav. Hello. Who's this? Varun. Hi, Vaibhav. Uh, मेरा साउंड इको कर रहा है आई थिंक Hello, sir. Hello. यस वैभव Hi. हाय वैभव हाँ सर, ये रैलीस के बारे में कुछ बता सकते हैं? रैलीस इंडिया देखते हैं I mean this stock need to cross to 280-81 for major strength 281 281 क्रॉस करना पड़ेगा यस क्रॉस करना पड़ेगा तभी तभी इसमें मतलब फर्दर स्ट्रेंथ आएगा अच्छा ओके which means 280 is the immediate area the resistance area it has to close above 281 अगर एक बार 281 को बंद हो गया शेक करके बंद कर दिया with good volumes I can it can get more strength ओके सर yeah ओके सर हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू same to you good luck थैंक यू सर हैप्पी न्यू ईयर कौन बोल रहा है यस
Nagendra Babu. Yes, Happy sir. New Year. Thank you. View on Confidence Petroleum and HFCL, please. I don't hear you first. फिर बताइए. Confidence Petroleum. Oh my God, this is Confidence Petroleum. Yes. Confidence. I am very sorry, guys. I am back, but I seriously have facing some internet issues today. Very sorry for that. Okay. Thank you. एक minute. Hello. Yeah, HFCL, I mean, above 80 rupees. I mean, once it trades about 80 rupees, we could see an upside range of up to 86 to 89 rupees. Okay. Support. Once it trades above, it's right now, support is close to 70. 70. I mean, the immediate support area is close to 75 rupees. 74, 75. And once it moves above 79 rupees, 79.80, the immediate range could be close to 86 to 89 rupees. And once it closes above rupees 90, it could be a fresh breakout. Okay. कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम देयर इज मतलब ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं कॉन्फिडेंस पेट्रोल में इट्स nothing much to convey here. I mean, Yeah. So many are suggesting it will double in 3 months. see, all I can say on the downside, it's very strong till it holds 68 to 66 rupees. I mean, till 68 rupees plus minus 1 rupee, 68 1 plus. I mean, till 68 or 67 rupees is very strong. If by chance if it comes close to that area, a chance can be taken. I mean, that's the least risk area. Okay. Thank you. Yeah. Yeah, thank you, Nagendra. I think there are a lot of person who are requesting to ask. We can take call from Vipan. Vipan, okay. So I will accept Vipan. Hello, Vipan. Hi, Vipan. क्वेश्चन सरन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी के ऊपर था स्पार इसमें बताओ जानना क्या है आई मीन व्हाट ये क्या लग ब्रेकआउट रहा लेवल ऑलरेडी दे चुका है या ब्रेकआउट लेवल पे है वही मुझे देखो जानना है ट्रेंड लाइन को तो रेस्पेक्ट किया देखो 2008 का देखो ब्रेकआउट होगा 305 के ऊपर आई मीन इफ यू टॉकिंग अबाउट 1 ईयर ब्रेकआउट अच्छा सो 305 के ऊपर ब्रेकआउट है और नीचे में 250 आई मीन जो एरिया है जहां से बार बार घुमा है वो हाँ 250 का एरिया है सुपर डुपर एरिया जब भी आया अभी भी अगर नीचे अगर बाई चांस अगर आ जाता है 250 के आसपास हाँ इट बिकम द बेस्ट बाइंग एरिया वहां पर रिस्क वहां पर risk सबसे ज्यादा कम होगा ओके और ओके एंड इफ यू सी द 1 ईयर चार्ट अगर देखते हो तो बहुत सारे मतलब वो इस एरिया के आसपास बहुत सारे वो रेजिस्टेंस वगैरह है तो ओवरऑल 305 6 के ऊपर में मतलब वो 305 6 के ऊपर में ही 1 ईयर ब्रेकआउट होगा ओके थैंक यू ठीक है Thanks, Vipan. Manish ji, next we have I think 3 more requests ऋषभ coming. को ले Rishabh, okay. Let's हाँ. take Rishabh. Hello, Rishabh. हाय ऋषभ I think he Hmm. he has no more requested. Yeah. Okay. Hello, Rishabh. Hello. Yeah, Yeah, please Rishabh. go ahead. Yeah. Can you give your views on general view on Subex?
Subex, yeah, I've been personally tracking it as well. मैंने मतलब काफी बार इसके बारे में दिया भी है, और ट्विटर में भी दिया है काफी बार. Yes. Like that, but it's consolidating very well. 14 मतलब नीचे में till it holds 49 rupees. 49 rupees जब तक होल्ड करता है, it's very much safe. It's very much safe. और अभी तो मतलब, और अभी last few months से it has been consolidating in this range 50 to 58 rupees में consolidate कर रहा है. तो अपने क्या है कि अपने अगर समझ लो अगर नीचे आता भी है तो close to 50 it's become a good buy. The risk reward ratio is favorable over there. 49 जब के नीचे जब तक बंद नहीं कर रहा है, it's very strong अभी आज की रेट में. तो आपको क्या लग रहा है ऊपर कितना तक जाएगा? See, कितना तक जाएगा? ये तो अभी मतलब ट्रेडिंग के लिए अच्छा चांस दे ही रहा है बार बार. 49 to 58 तो कई बार हो गया. तो मतलब रेंज वाइज में अभी घूम रहा है. इट हैज टू मतलब इसको अगर इसको ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए इसको 60 63 का एरिया 60 63 का एरिया इसको तोड़ना पड़ेगा. Until it goes below 63, until it moves above 63, the range will be 49 to 60 rupees. 49 से 61 का रेंज होगा. अगर 49 तोड़ता है तो 49 अगर बाय चांस कोई भी मेहम में तोड़ता है तो उस दिन क्या करना चाहिए? See, 49 देखो 49 तो see somewhere you have to trading में you need to keep a stop loss somewhere. So below 49 क्या होगा? 14 below 49 you exit. अगर चल गया तो 50 के ऊपर फिर घुस जाओ. your stop loss will be just 1 rupee only. अगर कुछ खराबी आया तो जाओ. तो अगर समझ लो फिर से स्ट्रांग में फिर से बाइंग करना तो 50 के ऊपर फिर से घुस जाओ. ठीक है, तो मैं बेसिकली इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, नीचे लो ऊपर बेचो, ऊपर लो नीचे ठीक है. एज लॉन्ग रेंज आज क्या होता है कि अगर आपको स्टॉक पसंद किसी को भी स्टॉक पसंद है तो somehow some people keep it for investment purpose and some part they keep on trading as well. So अगर आपको स्टॉक में if you feel कि स्टॉक में दम है, कुछ पॉसिबिलिटी है, so आप थोड़ा स्टॉक होल्ड भी कर सकते हो. और ट्रेडिंग तो you can do any time. So ट्रेडिंग के लिए एरिया यही है 49 on the downside till it holds very strong. आज की डेट में 49 is the key area for Subex. आपको मार्केट का ओवरव्यू क्या लग रहा है निफ्टी को लेके? मैंने अपना व्यू दिया है. आप शायद आपने अभी ज्वाइन किया? मैं कब ज्वाइन 10-15 मिनट हुआ. वो आपने मिस कर दिया. हम लोग तो ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लास्ट फ्राइडे जो बैंक का जो क्लोजिंग था, बैंक का ही सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग था बिकॉज ऑल अदर इंडेक्सेस वेर स्ट्रांग ओनली. बैंक निफ्टी वाज द ओनली इंडेक्स व्हिच वाज ट्रेडिंग वीक फॉर एट लीस्ट 2 वीक्स. सो फ्राइडे का जो क्लोजिंग था 34,400 के ऊपर में, सॉरी 35,400 के ऊपर में, 35,400 35,500 इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर बैंक निफ्टी. एंड लास्ट फ्राइडे इट मेंटेन थ्रू आउट from opening till end, it maintained above the area. और फिर 35-41 में बंद किया. So और क्लोजिंग में हमने FI का बाइंग भी देखा. So this is a very important area. This is first day close on Friday. We need few more closing above the same for the कल परसों भी अगर ऐसा बंद मिल जाए, things इस एरिया के ऊपर भी अगर टिका रहे, things will get more stronger from here. Bank Nifty is the key. तो आपको अभी क्या लग रहा है, मतलब निफ्टी क्या लेवल से घूमेगा या क्या लेवल के ऊपर एक ट्रेंडिंग मूव आएगा? तो निफ्टी का जो लेवल दिया था वहां से आके गया है. अगर आप ट्विटर फॉलो करते हो, निफ्टी का लेवल मैंने दिया था 16450 to 16250. 16,400 का लो बनाया, वहां से 1,000 पॉइंट ऊपर. आई डोंट नो इफ यू हैव फॉलोड. एक मिनट मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट. मैंने देखिए December 20 को लिखा था. December 20th there could be a fall till 16,450 to 16,270. मतलब और इसने लो बनाया 16,410 का. फिर अब बाय ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स. ओके, तो अभी इस लेवल में क्या लग रहा है, इस लेवल में कंसोलिडेट करेगा क्या? अभी आपको बैंक इंडेक्स पे आपको वॉच करना है. बैंक इंडेक्स अगर 35,400 500 अगर if it can maintain, it will take all the indices high from here as well. बैंक निफ्टी से की आप ये मत बोलो, मतलब बैंक निफ्टी 35,400 500 के ऊपर अगर टिका रहता है सब इंडेक्स में और स्टेप आ जाएगी. अभी तो 35,481 में क्लोज दिया है. कल देखो कल क्या होता है. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट.
कमिंग डेज में ये ऐसा एरिया है जहां पर बैंक निफ्टी इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर ए लॉन्गर पीरियड। यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कुछ दिखेगा। तो बड़ा अगर दिखता है तो 35,400-500 के ऊपर बड़ा है और 400 इट गेट्स वीकर। तो 35,400-500 से की एरिया, आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट की एरिया, इसके ऊपर अगर टिक जाता है और तो बंद भी हो जाता ऊपर चला जाएगा तो फिर मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आएगा, नहीं तो फिर डाउनवर्ड मूव आएगा आपको। एग्जैक्टली। तो बस तो फिर मतलब क्योंकि ये बैंक निफ्टी से की, बाकी सब इंडेक्स सब स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं, बैंक निफ्टी पहली बार 2 हफ्ते के बाद में ये पहली बार ठीक से बंद किया है फ्राइडे को, वो भी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि द एंटायर आवर्स 7 आवर्स इट वाज ट्रेडिंग, उस एरिया के ऊपर ट्रेड किया है। हाँ, मतलब पूरा दिन, मतलब एक अच्छा लेवल में पूरा दिन एग्जैक्टली। क्योंकि ऐसे एरिया में क्या होता है कि माल बहुत आता है, तो सब माल को एब्जॉर्ब भी किया, टिका भी था। तो और एट द एंड ऑफ द डे में एफआई का बाइंग फिगर भी आया। सो ऑल दिस गिव्स कॉन्फिडेंस। लेकिन क्या ये फर्स्ट डे था, तो आई वुड प्रेफर कि ये चलो 1-2 दिन और ऐसा बंद दे दें। देन हम लोग, क्योंकि ये ऐसा एरिया कि बैंक निफ्टी यहाँ पर नहीं टिकने वाला है, जैसे वेरी की एरिया, ये एरिया आई मीन समथिंग। आपका बोलने का मतलब है अगर ये 1-2 दिन इसी लेवल में 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे में रह लिया, हाँ, मतलब आई वांट क्लोजिंग अबाउट 35,400 430-40 के ऊपर, ये मतलब मुझे उसके ऊपर है इंडेक्स, दैट्स ऑल। 35,400-500 ऊपर है। हाँ, तो यहाँ से अगर एक ऊपर होके अगर 200-400 पॉइंट हर दिन दोनों दिन ऊपर रहता है, उसके बाद आपको लगता है ट्रेंडिंग मूव आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो उसमें फिर लॉन्ग्स खेलना चाहिए क्या? हाँ देखो, अगर केस हो जाता है तो क्या होगा, बैंक इंडेक्स में एक स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके कैन प्ले ऑन। आई मीन समझ लो आज अगर नहीं, मैं बोल रहा हूँ आज कल अगर समझ लो स्टार्टिंग में 1-2 घंटा ऊपर टिक जाता है, सपोज इन केस, तो किसी को भी अगर ट्रेडिंग लेना होगा तो उसको मैं ये कहूंगा कि भैया 35,400 के नीचे में स्टॉप लॉस रखो। मतलब मैं कैश की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कैश के एरिया बात कर रहा हूँ। तो आदमी क्या करेगा, 35, आई मीन समवेयर कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो 35,400। तो आपके बोलने का मतलब है जैसे कि ये 100-150 पॉइंट ऊपर भी खुलता है और एक दो घंटे पहला 2-3 आवर रह लेता है। हाँ, और अगर लॉन्ग जाना है या तो निफ्टी में या तो बैंक निफ्टी में, तो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 35,400 का। बैंक का मैं बोल दिया, हाँ, बैंक में 35,400 के नीचे जाए तो कहीं भी स्टॉप लॉस डाल दो, कहीं भी 34,380, सॉरी 35,380, 350 कहीं डाल दो, लेकिन वो 35,400 के नीचे स्टॉप लॉस डालना है भैया। आई मीन ये ऐसा एरिया यहाँ से कुछ दिखेगा। ये इस एरिया में ज्यादा दिन बैंक निफ्टी मतलब नहीं टिकेगा। अगर इसके ऊपर टिक गया तो वेरी गुड अपसाइड ऑन द अपसाइड। तो ये आई मीन ये फर्स्ट डे है, तो आई मीन आई वांट 1-2 दिन और हो जाए ऐसा तो अच्छा रहे। और अगर डाउन साइड जाता है तो कितना डाउन साइड जाएगा? डाउन साइड में देखो नीचे का एरिया है 34,600, 500 और आई मीन इमीडिएट बेस्ट एरिया 34,600 के आसपास है, और बिलो 34,500 के नीचे है कम से कम 34 to 33,900। मतलब यहाँ से 1,600-1,700 पॉइंट नीचे का घर है। यस, कम से कम 1,500 पॉइंट। 1,500 पॉइंट। और ऊपर साइड में? ऊपर में तो अगर यहाँ टिक गया ना तो ऊपर में बहुत कुछ दिखा सकता है, नया चीज। तो ये ऐसा एरिया है, इसलिए मैं इस एरिया का बहुत बात करता हूँ। मैंने बहुत बार। निफ्टी में आपका क्या क्रूशियल लेवल है? 17,530 के आसपास। मतलब उसके ऊपर ही लॉन्ग जाना है। मैं देखिए मेरा एक पुराना पोस्ट है 23 नवंबर का, आप उसको देख लो, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। I think it's 10:55. We will take another 4-5 requests. Ramesh, Pratyush, you have once again lost the connection. Ramesh. हेलो रमेश। हेलो सर। हाय रमेश। हाँ नमस्कार सर। मेरे को आप बताएंगे सर, मेरे पास एक कैश का स्टॉक है रामको सिस्टम्स, जो कि मैं पिछले रामको सिस्टम्स। रामको सिस्टम वो पिछले 6 मंथ से मेरा एवरेज है 500+। कुछ आप उसके बारे में बता पाएंगे? देखता हूँ।
देखो ऐसा है कि इसको स्टॉक को स्ट्रांग होने के लिए 478-80 के ऊपर बंद करना पड़ेगा। जी जी। जब तक ये इसको बंद नहीं करेगा, इस पे स्ट्रेंथ आसपास ही है, 472 पॉइंट हाँ जी। में बंद हुआ है, ज्यादा दूर भी नहीं है, बट इसको स्ट्रेंथ होने के लिए, स्ट्रेंथ आने के लिए 478 480 के ऊपर बंद करना पड़ेगा। जी पिछले तब जाके इसमें अच्छा स्ट्रेंथ, तब जाके इसमें अच्छा स्ट्रेंथ आ सकता है। जब तक ये अभी का एरिया यही है, अगर इसको बंद कर देता है तो वेल एंड गुड। जी जी। जब तक बंद नहीं कर रहा तब तक इसका स्ट्रेंथ नहीं आने वाला। जी जी। पिछले एक वीक से 478 प्लस ही बंद कर रहा है ये। आई मीन एक बार अब फिर से एक बार अटेम्प्ट अगर करे, बंद करे तो अच्छा रहेगा। आई मीन एरिया वही 478-80 के ऊपर में, आई मीन 480 पकड़ लो आप। जी जी। 78 480 के ऊपर में, इसमें अगर बंद कर दिया 2-3 दिन अगर कंटिन्यूस बेसिस पे, इसमें अच्छा बाइंग, इसमें अच्छा अप ट्रेंड दिखने का चांस फिर आएगा। जी जी। ठीक सर, थैंक यू यही सर, है। थैंक यू। मतलब उतना दूर भी नहीं है, आसपास ही है, बट जी जी। इम्पोर्टेंट एरिया के आसपास ही है। जी जी जी। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। या we have got Nirav Bokadia. He's from Mumbai. He will give us some information on Mumbai. Nirav. Nirav. हेलो सर, हाउ आर यू? मनीष जी हाय एंड प्रत्युष नीरव, जी। क्या हालचाल बॉम्बे का भाई? प्रत्युष जी वापस अच्छा डिस्कनेक्ट अच्छा हो गए सर, यार। आई आई एम मीन फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। क्या हाल है मुंबई में? सब सर मत बढ़िया? पूछो सर, उद्धव जी की सरकार है लॉक करना चाह रही है। पॉलिटिकल 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 कोई बात मत करना, सिर्फ बताओ वहां पर क्या, आई मीन क्या सर फील हो रहा है, नथिंग नथिंग कैसा सर, कैसा लग रहा है वहां बस पर? आई मीन केसेस आर इंक्रीजिंग, दैट्स ऑल। नहीं, बट केसेस आर इंक्रीजिंग, बट उतना भी कोई मतलब वो मतलब हेवी नहीं वाला नहीं, नहीं हैवी है, वाला नहीं मोस्टली है, माइल्ड बस है। बट एक पैनिक बन गया है सर, एवरीवन आर स्कैर्ड सर, नथिंग। तो यार आई मीन द मोर वी स्पीक अबाउट, क्योंकि मार्केट 1000 पॉइंट गिरता है उसमें ही लोगों को आ जाता है फियर एंड पैनिक। तो फिर तो कोरोना है। आई मीन लोग जितना इसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे उतना ही लोगों को फियर भी राइट होगा। सर, राइट सर। आई हैव जस्ट टू थिंग, वन इज बीसीजी एंड वन इज टीटीएमएल। बीसीजी आई थिंक बहुत बढ़िया ना, मुझे पता नहीं था। टीटीएमएल डोंट आस्क मी अबाउट बोथ, बिकॉज टीटीएमएल यार आई मीन कुछ बोलने को है ही नहीं। आई मीन दैट, आई मीन फ्रॉम 2-3 रुपीज टू 200 प्लस। आई मीन अनचार्टेड बहुत 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 पहले हो गया अनचार्टेड एरिया। आई मीन ओके, सो बीसीजी सर। हेलो हेलो मनीष जी। नीरव। हाँ जी मनीष जी। अरे आई आल्सो गॉट डिस्कनेक्टेड। मैं ये कह रहा था कि मतलब कुछ बोलने को है नहीं इसमें, बिकॉज ये सब स्टॉक काफी पहले, आई मीन 50 to 53 के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ था, लंबा ब्रेकआउट था वो, वहां से फिर वो नॉन स्टॉप ही। आई मीन क्या हो रहा है इसमें? आई मीन मतलब समथिंग डेफिनेटली कुछ अच्छा ही हो रहा होगा तभी इतना प्राइस बढ़ा है, बट टेक्निकली कुछ बोलने को नहीं है। Okay, no problem. Thank you very much, sir. Yeah. Have a good night, sir. Good night. Hi, Suren. So happy New Year to all the listeners and the host, co-host. Hi, Great. I'm from Maharashtra and specifically from Nagpur region. And Okay. I had queries regarding three stocks, sir. So I just want to know, because everyone have as a from past few years we have seen that since this Twitter and other things have came up, a lot of people they start giving Diwali pics, and that was for sure, which was since ages, but now they are coming up with the 2021 stock, right? Stock for 2021, first stock to select, and all those keywords and hashtags.
So I just have 3 stocks for long term query. I mean 6 से 8 महीने का इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कि मैं 10,000 अगर बैंक में एफडी में रखता हूँ तो आई विल गेट 4 to 5% ऑफ द इंटरेस्ट रेट. Okay, so in case not keeping that money in FD, and if I can invest in these 3 stocks which I will name, okay, is it fine? And secondly, as per the trend, from host and co-host, any one stock, if you can prefer for long-term investment, okay, not purely from investment perspective, not from day-to-day routine trading. So my 3 query stocks are Trigen, Tata Elxsi, and United Spirits, sir. If you are able to hear me. I can. So like what do you want to know? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंपली while entering in these stocks Trigen, Tata Elxsi and United Spirits in today's level, that means कल जब मार्केट ओपन होता है irrespective of वो कोई भी लेवल पे हो, क्या मैं एंटर कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म, आई मीन 6 महीने के लिए मिनिमम, और कैन आई बीट दीज एफडी एस्टिमेट्स? In that case, why don't you try ITC? सर ITC एक्चुअली No, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आई विल स्पीक अबाउट ट्राइजन. ठीक है, ट्राइजन जो है वो अच्छा बंद किया है फ्राइडे को, एंड 161 के ऊपर में एक ब्रेकआउट भी है. आई मीन दैट ब्रेकआउट विल टेक द स्टॉक टू 174-76 तक ले जाएगा, 175 176. एंड इफ ट्रिजन अगर बंद कर देता है 176 के ऊपर बंद कर देता है 176 178, इट विल बी इन अ फ्रेश ब्रेकआउट. ओके, तो सो ट्रिजन लुक्स गुड. इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 159-60 के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ है, और आई थिंक ये लास्ट फ्राइडे को 171 तक गया भी था, 165 बंद भी किया है. स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग, 175 तक इसका एरिया है. वंस इट क्लोजेस अब 175 176 के ऊपर बंद करता है, 176 178 76 78 176 78 के ऊपर बंद करता है, इट विल बी इन अ फ्रेश ब्रेकआउट. ओके, अनचार्टर्ड. ऑलराइट सर, आई हैव नोटेड दैट. ओके, सो एक ये हो गया, और एक था यूनाइटेड स्पिरिट्स. आई मीन इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक फॉर ट्रेडिंग. यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिया है, बहुत बार. अभी अगर देखूं तो स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट एरिया है 883, 886 एंड 883 आर द इमीडिएट एरिया. ओके, ऊपर में 914 to 925 आर द इमीडिएट एरियाज, और 925 के ऊपर में इट कैन गो अप टू 960 975. तो मतलब इमीडिएट जो मतलब ये जो सपोर्ट एरिया है वो बहुत नियरेस्ट है 886 and 882. So keeping a stop loss below 880, you can trade on this. Okay, so it is always I mean purely from my limited knowledge, so if I will invest in today's date in Trigen and United Spirits, definitely after a period of 6 months or so I can beat the FD estimates at least, right? Most probably yes, but still स्टॉक मार्केट है तो कोई गारंटी मैं नहीं दूंगा. करेक्ट, और गारंटी इसमें हाँ, इसमें मतलब ऐसा भी पैसा डूब भी सकता है. आई मीन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. करेक्ट. बैंक में तो श्योर शॉट मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर श्योर शॉट घटा भी हो सकता है. करेक्ट, बट दैट इज द रीजन यू गाइस आर हियर. आई मीन लेवल मैटर्स. मनीष सर है, आप हो, आपने जो अभी सपोर्ट एरियाज बताए हैं, आई हैव टेकन ए नोट ऑफ दैट. I have taken the cognizance of that, so I will take that call accordingly. And final thing with respect to Tata Elxsi, I understand that this stock has from past 3 years, if you will see, मतलब एक अलग ही लेवल पे चला है ये स्टॉक, और अभी भी मतलब there is no looking back. I mean the perspective everyone who giving about Tata Elxsi is that मतलब ये अगला काफी अच्छा मतलब मल्टी बैगर, एटलीस्ट सिंगल बैगर तो हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई जस्ट वांट योर थॉट ऑन दिस स्टॉक टाटा एल्क्सी. मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक इंस्टेड ऑफ बाइंग, सी हो सकता है, आई मीन इट मे इवन गो अप, बहुत अच्छा भागा भी है फ्रॉम ऑड 600 रुपीज टू 6,500 रुपीज तक होके आया है. आई मीन
why there's a need to go for all this stock when I think you can have other opportunity as well. I mean ITC में ध्यान दो, क्या प्रॉब्लम है? सर आईटीसी में प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली इट इज रेंज लेवल, और मैं कैसा हूँ कि आई एम इनटू जॉब, ओके, When you are सो आई एम नॉट, जब आपको 6 महीने मैं का फुल टाइम ट्रेडिंग जब नहीं आपका कर 6 महीने सकता हूँ, का मतलब नहीं, तभी तो आईटीसी बोल रहा हूँ ना. ओके, आई मीन आईटीसी तो उतना मतलब ऊपर नीचे होगा भी नहीं, तो उतना मतलब पेन भी नहीं देगा. आई मीन अगर ये नीचे गिरता भी 5-10% तो कोई खास पेन नहीं है, और अपसाइड तो पूरा ओपन पड़ा है, इसका भी तो कुछ हुआ ही नहीं है. करेक्ट, बट I mean, instead of buying a stock worth rupees 6,000, why don't you buy ITC? Okay. Simple. Right, sir. Right. And thanks for this update, sir. And one last query from both of you, lead. Any stock for 2021 which you suggest can be No. a part of portfolio? I'm not asking for any target. ITC could be, I'm not asking for any target or anything, but it's a good stock. I mean, हाँ भाई, ये आपने रिकमेंड किया है, ये सही स्टॉक है, मतलब वन कैन गो अहेड विद दैट. नहीं, ऐसा नहीं है. डोंट गो ब्लाइंडली, कभी ब्लाइंडली मत जाओ. मैंने कुछ बोल दिया तो ब्लाइंडली वो होगा, ऐसा कभी कुछ नहीं है. नहीं ब्लाइंडली नहीं सर, लाइक आई एम फॉलोइंग यू गाइज. ओके, तो मतलब मैं देखता हूँ ना ट्विटर पे और बाकी जगह टेलीग्राम पे द कॉल्स व्हिच आर बीन गिवन, लाइक सर का हैशटैग चलता है लेवल मैटर्स, तो उसमें दे एक्चुअली यू नो मतलब जस्ट छू के निकल जाता है या वहां तक आता भी नहीं है, मतलब इट्स दैट यू नो परफेक्ट प्रिसीजन इज द राइट वर्ड. Right. So from that perspective, I am asking. I'm not asking for any specific stock or any. मतलब ऐसा नहीं कि. But just एक जानना चाहता हूँ मैं समझ गया. देखिए, एक तो क्या है कि मैंने आईटीसी के बारे में पहले ही बात किया कि आईटीसी द वे इट हैज गिवन बोनस, लास्ट 3 बोनसेस मैंने पहले भी लिखा, भी ट्विटर में भी लिखा है. तो आई मीन एवरी 5 to 6 ईयर वो बोनस दे रहा है. तो 21 और 22 का डेट था. आई मीन मतलब वो 5 साल 6 साल का अगर इक्वेशन फिर से डाले तो 21 और 22 ही आता है वापस. तो 21 में नहीं आया तो 22 में वी कैन एक्सपेक्ट, एक एक्सपेक्टेशन है कि 22 में वी कैन, आई मीन आईटीसी में कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी. आई मीन लुकिंग एट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ लास्ट 3 बोनसेस, तो वो 5-6 साल में बोनस दे रहा है. तो दिस इज द 6th ईयर 2022. तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कुछ अच्छा इसमें अनाउंसमेंट आ जाए इन टर्म्स ऑफ, I mean, bonus or demerger, whatever. I mean, this year could be one of the best area, could be one of the best for ITC. I mean, a high probability. और दूसरा है ये जो I keep talking about INOX, सबको पता है यहाँ पर. I mean, see, due to Corona, I mean, this is the first, I mean, industry which get affect. तो अगर आपको लगता है कि this Corona effect is not going to be large, you can concentrate on INOX Leisure. सुरेन इज, आज क्या इंटरनेट कनेक्शन ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है. सुरेन, am I audible? Suren, am I audible? Hello. Hello. Pratyush. I think Ankur. Hi Ankur. Hi, how are you? Happy New Year. I am good. Thank you. Same to you very much. Thank you.
Basically, I have a query on equity cash segment of Indian conveyors, international conveyors, sorry, international conveyors. नॉट ट्रैकिंग, नेवर ट्रैक्ड। क्या नाम बताया, फिर बताओ। इंटरनेशनल कन्वेयर्स, ये नाम है। हाँ जी, इंटरनेशनल कैलकाटा की कंपनी है, पार्क स्ट्रीट में लोकेटेड है कॉर्पोरेट ऑफिस। नहीं यार, इसका बताओ कोड क्या, बताओ। एक We will take another 1-2 queries. Next will be Anil ji. Ankur, you there? I think you are talking, but मुझे आवाज नहीं आ रही है। Ankur, I cannot hear you. Hello. Hello. No. Anil ji. हेलो हेलो, हाय मनीष। अनिल जी, हाय अनिल हैप्पी जी, न्यू ईयर। कैसे हैं? आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ सर। मैं भी ठीक हूँ। सर मेरा दो स्टॉक में थोड़ा स्पेसिफिक क्वेरी था, ग्रेफाइट इंडिया एंड दूसरा सुप्रीम पेट्रोकेम। कैन यू सम हाईलाइट? ग्रेफाइट या और ये क्या बताया? सुप्रीम पेट्रोकेम। प्राइस है 702। या ओके, इस पे आप बताओ, आपको क्या जानना है, क्या स्पेशली इसमें बेसिकली क्या इसमें जानना है? इसका सपोर्ट एंड आगे फर्दर रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह पर ओके, इसका हाँ, मैंने बताइए। काफी इस कंपनी के बारे में रिसर्च किया है और जो लास्ट अच्छा 2 साल से इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी हो रहा है एंड ओके, मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक काफी आगे अच्छा करना चाहिए। एक चीज है, बोल सकता हूँ कि ये लास्ट 6-7 महीने में ये स्टॉक अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है इन द एरिया ऑफ 630 टू 700 750-60 तक बहुत अच्छा मतलब किया है लास्ट 6-7 मंथ्स में। आई मीन दिस इज द एरिया जहाँ तक ये मतलब यहाँ से ये यहीं पर गेम खेल रहा है। तो इसका ऊपर का सबसे टॉप मोस्ट एरिया हो गया है 770, विच विल बी द ब्रेकआउट एरिया। ओके, ठीक है, और नीचे में इमीडिएट सपोर्ट एरिया हो गया आपका 633। 630। आई मीन द बेस्ट वन जो अपने बात करते हैं एलआर के बारे में, 633 के आसपास है। 635 633 इज द एरिया। ओके, तो जितना पास मिले, अगर कभी वापस बाई करना हो, मन हो और ऐड करने का मन हो, तो आई मीन 240 शुड बी द आइडियल एरिया। ओके, और ऊपर में और मतलब ये रेंज है 635 टू 750-60, दिस इज रेंज। तो जब तक ये 700 769 70 इज द ब्रेकआउट रेजिस्टेंस। ओके, तो वो बंद करने के बाद भी ही नया वो फ्रेश ब्रेकआउट होगा, तब तक तो साइडवेज मूवमेंट। ओके। और दूसरा था आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का कोड कुछ चेंज हुआ है क्या? ग्रेफाइट पूरा नाम क्या है? ग्रेफाइट इंडिया ना? या ग्रेफाइट इंडिया दिखाई दे रहा है, एक मिनट। ग्रेफाइट प्राइस चल रहा है 508। इसको बंद होना पड़ेगा 528 के ऊपर। इसका एलआर
अच्छा जब तक उसको बंद नहीं करता कुछ होने का नहीं है। आई मीन मतलब वो दिल स्ट्रेंथ एरिया वही है, इट हैज टू क्लोज ओवर इट। ये भी रिसेंटली वहां टच भी होके आया है लेकिन बंद नहीं कर पाया। यस, लास्ट में ये 400 से मोटा 548 के आसपास टच करके क्लोजिंग 5 को दिया। वो बंद करना पड़ेगा 528 इसके ऊपर। ओके 528 जब तक बंद नहीं हो रहा ऊपर कुछ होने का नहीं है। ओके अगर 528 के ऊपर बंद होता है तो नेक्स्ट इसका क्या टारगेट समझते हैं? मतलब 530 के ऊपर बंद करे तो सबसे बेस्ट है 28 के ऊपर में, और ऊपर में उसके बाद में फिर ऊपर में आपके 600 रुपया मतलब 580 टू 600 रुपीज का एक अच्छा बाउंस देगा इनिशियली। ओके स्टेप बाय स्टेप, आई मीन दिस विल बी द फर्स्ट एरिया। ओके 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 अच्छा वन थिंग मोर, आयोन एक्सचेंज के बारे में अभी वो काफी दिन से रेंज बाउंड में खेल रहा है, तो कुछ लेवल इट शुड ब्रेक टू मतलब कौन सा लेवल में ब्रेकआउट देगा तब जाके नया प्राइस? मैंने ये दिया भी है। आई मीन ये तो ऑलरेडी इलाके के ऊपर में है, तो उसमें मतलब कहाँ से मतलब ब्रेकआउट और चल मतलब ये आयन एक्सचेंज फिर से वापस अपडेट कर देता हूँ। आयन एक्सचेंज आपके नीचे में 1980-75 तक सेफ है, ठीक है। और ऊपर में इसको आई मीन समझ लो इसको आई मीन ऐसा कोई डायरेक्ट एरिया नहीं है। आई मीन गैप्स है 100 पॉइंट्स के गैप्स है, बट जो कि ये बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि इलाके के ऊपर ट्रेड कर रहा है 1975-2000, तो इसमें एक अच्छा ट्रेंड कभी भी इसे मिल सकता है बड़ा ट्रेंड। इसमें मतलब इसमें मूवमेंट आ भी रहा है, आपने देखा भी होगा अभी रिसेंटली 19 मार के आया, ऊपर में 2180 मार के आया, तो ट्रेडिंग वाइज ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये 2150 के ऊपर ये उस रेंज में जाता है, वहां से वापस नीचे 2100 आ जाता है, नीचे आ जा रहा है। हेलो हेलो हाँ सर हो गई थी। आई आपको आवाज है आपको? मतलब अगर आपका बाइंग अगर एरिया के आसपास है, यू आर इन लीस्ट रिस्क एरिया, आप जितने बार खेल सको, मतलब क्योंकि 1975 के ऊपर स्ट्रांग है, तो जब तक वो एरिया कैसे बंद नहीं करा कोई मतलब टेंशन भी नहीं है, तो जितने बार खेल सको। आई मीन इट्स ओवरऑल स्ट्रांग, धीरे धीरे इट विल गो अप। ओके ठीक है ना? हेलो मिठुन, I'm taking my last query from Mithun, from Mithunda. Mithun. हेलो मनीष भाई। हाय मिठुन दादा। मिठुन चक्रवर्ती। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, थैंक्स अ लॉट। बताओ। How is Orient paper, Manish bhai? I've been holding from 28 rupees. Fantastic. I mean, it's holding very well. I mean, चलो ऊपर में 38 भी गया था, 38 मार्क की भी आया, and it's consolidating well. I mean, I was tracking few of the paper stock like Janus paper, Orient paper. I mean, these all are showing good strength as well. I mean, downside is very limited from here. I mean, for Orient paper, I mean, the area of 30 to 29 rupees will act as a strong support area. I mean, it's close to very strong support area as well. So yeah, it is holding 30 very well. So like if anybody buying at 30 or 31, he can keep a stop loss below 29 rupees. The bare minimum. Oh, super. Bare minimum risk. I mean, 29 below 29 on closing basis. That would be the best. Okay, Manish. I mean, it's been holding its key area since last 1 year.
Absolutely, yes. So अभी के लिए 29 is the stop loss for Korean paper. I mean, if anybody can get in around at 31 or 30, I mean the stop loss is going to be just below 30, just below 29 rupees, the bare minimum stop loss. Yeah. और बताओ. Thank you. Okay. Thank you. Okay, thank you everybody. With this, we close this session. We discussed about the markets in the form of permutation combination from Dow Jones, Bank Nifty, Reliance, which gives us a real picture instead of going here and there. I mean, this their key areas gives us the confidence, and we have talked a lot about Bank Nifty today. So let's see how Bank Nifty performs in the days to come, because this area is very important, and 35,400, 35,500 is a very important area, and if it can manages to stay above the same, I hope it does, then probably we are going to see more of FII getting back into action. So let's ending it with a good hope. Thank you everyone. Good night.